friends, I am Abhishek Baranwal, your chemistry faculty. Today, in the lecture series of electrochemistry, we are going to study about the electrochemical cell, and in electrochemical cell, we will study about the galvanic cell. Here we know about the oxidation half cell and reduction half cell, and thereafter we will go about the Daniell cell, how Daniell cell functions, and their representations, and how we can calculate the EMF of the cell, electromotive force of the cell. There we are also going to study about the salt bridge, that is a part of Daniell cell or galvanic cell. So here we know about the importance of salt bridge, and then after then we are going to understand the representation of galvanic cell and some problems related to the theories, and then we are also going to understand how to calculate EMF of the cell. Okay, so and then what are the conditions for the reaction to happen, like the EMF of the cell should be greater than or equal to 0, and based on that we are going to solve some problems, and then we are going to understand the concentration cell, what is concentration cell, and then also going to understand the Nernst equation. Nernst equation, you already know, it is very important. It is essential part of the electrochemistry, and everything, and most of the problems are from this part. And from after Nernst equation, we are also going to derive the Nernst equations, and then a standard free Gibbs energy. Okay, so what is the relation between the delta G, Gibbs free energy, and electromotive EMF of the cell, and based on that some problems. So let's start, and we start from beginning. So first, electrochemical cell. It is a system in which two electrodes are fitted in the same electrolyte or in two different electrolytes which are joined by a salt bridge. So basically electrochemical cell consists of two electrodes. दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में डीप किए जाते हैं और जो कि एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके बारे में ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर्स में इसके बारे में बताया गया है, आप वहाँ पर फिर से देख लेंगे, लेकिन ये बेटर वर्जन है. मैं वहाँ पर भी कुछ बताया हूँ और उससे बेटर यहाँ पे डिटेल सारा कुछ डाला हूँ. मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, it has two types, galvanic cell and electrolytic cells. In electrolytic cell, here electrochemical cell, it has two types, galvanic cell and electrolytic cell. Electrolytic cell converts electrical energy into chemical energy, but galvanic cell, it converts chemical energy into electrical energy. There are many problems that there are many objectives they ask what galvanic cell does, galvanic cell क्या करता है. Then we should say that it converts chemical energy into electrical energy, that's all. Okay, so galvanic cell, it is a basic version of voltaic cell. Galvanic cell and voltaic cell. This voltaic cell, sometimes there is confusion what is voltaic cell. So galvanic cell is the basic version of voltaic cell. Okay, so it converts chemical energy into electrical energy. And how chemical energy is converted into electrical energy? It is done by redox reaction. Okay, so already you know redox reaction. Redox means a reaction that involves reduction as well as oxidation is called redox reaction. Okay, that's all. So now comes to the galvanic cell. Galvanic cell, it consists of three parts. First, oxidation half cell, second, reduction half cell, and then third is salt bridge. So here chemical reaction that takes place in two separate compartments. One is oxidation half cell and second one is reduction half cell, and each compartment consists of a suitable electrolyte solution as well as metallic conductor. It means that each compartment there are two cells, so each compartment
कंसिस्ट ऑफ है सुटेबल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन where ions are dissolved and a metallic conductor, those are called electrode. Those metallic conductor are called electrode. Okay, we are going to know about it in by figure here. So half cell means already I told you here that a galvanic cell consists of three parts: oxidation half cell, reduction half cell, and short bridge. So half cell, it means that it should contain one electrode, and second it should contain electrolyte or electrolytic solution. So compartment or half cell consists two things: first electrode or metallic electrode, and second one electrolytic solution. So now come to the part A of galvanic cell, that is oxidation half cell. So oxidation half cell, already you know oxidation. What is oxidation? If something have more charge, if that means if there is release of electron, okay, so that is called oxidation. Here there is zero charge and here some charge, and because there is release of electrons, so it is called oxidation. Okay, so previously, obviously you know it before. Now we are going to construct the oxidation half cell. So in oxidation half cell there is one electrode. Here you are seeing this electrode, and this is electrolytic solution. So oxidation half cell consists of electrode and electrolytic solutions. अब इसके बारे में बेसिक वे में देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे वाटर है या एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर होता है, वाटर का ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो क्या करता है कि एम ऑक्सीडेशन होने के कारण एम से Mn+ आ गया, कोई चार्ज आ गया यहाँ पे, तो ये Mn+ को ये क्या करता है कि वाटर का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसका प्लस चार्ज होता है। ये प्लस चार्ज को इसको ले करके ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है। ओके, अब जैसे ही M से Mn+ आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? चूँकि यहाँ M से ये Mn+ तो आ गया, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो इसी मेटल्स पे रह गए, इलेक्ट्रोड पे रह गए, और वहाँ पे इलेक्ट्रोड ये हमेशा रह नहीं सकता है। तो ये मेटल का दो पार्ट हुआ, एक आयन प्लस आयन और एक माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज वाले सारे के सारे ये क्या सॉल्यूशन में चले गए, लेकिन माइनस चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे तो मेटल पे रह गए, उसी को यहाँ पे शो किया गया है। जब ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए चार्ज, प्लस चार्ज मेटल के और माइनस चार्ज यहाँ पे आ गए, तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो गया, पॉजिटिव या निगेटिव? यू टेल, आप बताओ ये क्या होगा? ऑब्वियसली ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रोड गेट्स निगेटिवली चार्ज्ड। और इसी के कारण से ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दैट इज द इलेक्ट्रोड इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज कॉल्ड, एंड हियर इट इज कॉल्ड एनोड एंड इट इज निगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अब ये यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव पॉजिटिव होने के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो here it says that a potential difference is established between the metal electrode and ionic solution, as the metal is negatively charged while ionic solution is positively charged. Okay, ये negatively charged है and this one is positively charged, so a potential difference arises because of the charge difference. So when this electrode, it is negatively charged, so it is called anode, and it shows in negative way. This type of electrode is called also negative electrode. Okay, so simply we can say that oxidation potential of anode is E anode. That means E is EMF or potential difference between the solution and electrode. Okay, and it is at anode, so it is called anode potential. Also,
if we take a standard state conditions, like pressure should be 1 bar, that means pressure should be at aqueous solution 1 bar, and concentration of solution is 1 molar, and temperature is 25 degrees centigrade. Then at that situation, oxidation potential it is also shown in this way, M to Mn plus, because oxidation is happening from here to here. Okay, so for a standard conditions we show dot. Here you are seeing that here there is no dot, here there is no dot, but here there is dot. Okay, so dot is represented by a standard situation, so it is a standard oxidation potential. Now come to the reduction half cell. In same way, like oxidation half cell, here reduction is happening. Okay, so reduction here, from here to here reduction is happening, and in reduction you already know that gain of electrons happens. Okay, it is positively charged and it absorbs some electrons and metal is produced. Okay, so it is called reduction. And in reduction half cell, again there are two, it consists of two parts. One is electrode and again it's electrolytic solution. As you are seeing here, there is one metal electrode is initially neutral, but after some time when it comes to the solutions, so and wire is connected, then because of the reduction, Mn plus means electrolytic solutions ions. Okay, so charges of electrolytic solutions ion, it gains some electrons, and it gains some electrons that is coming from electrode. So it gains some electrons, so it absorbs some electron here. All electrons comes dissolved into the electrolytic solutions, and only positive charge remains on the electrode. So by that, this solution, this electrode gets positively charged, and this electrolytic solution is negatively charged. So again there is a potential difference builds up, and that potential difference is called reduction potential. Okay, so this reduction potential of cathode, E cathode. Okay, so a reduction potential builds up because of the difference of charge between the electrode and electrolytic solution in reduction half cell. Here electrode, that is also called cathode, is positively charged because a positive charge is developed. So again at a standard situation, this reduction potential is shown by Emn plus dash m, and a standard symbol is given. अब आते हैं इलेक्ट्रोड साइन पे। तो हम लोग देखे हैं अभी तक जो देख रहे थे वो देख रहे थे गैल्वेनिक सेल में। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड को हम लोग क्या निगेटिव में शो करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव में शो करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में M से Mn प्लस आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का ये क्या होता है, बाहर की ओर जाता है, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बाहर से अंदर की ओर आते हैं। ओके, तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है एनोड में ये आउट की ओर होता है और ये कैथोड में अंदर की ओर होता है। और इसमें हाफ रिएक्शन में एनोड में देख चुके हैं आप, ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ये हो गया गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में जो ईएमएफ जो जनरेट किया जाता है वो सेल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के कारण इसमें एनर्जी सेल के द्वारा दिया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ईएमएफ को अप्लाई करते हैं सेल पे, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालते हैं। सो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू chemical energy. Okay, so here again sign of electron flows is out
in anode and cathode is in, but the symbol of anode here is plus and cathode is minus, and reduction, and at anode oxidation happens and at cathode reduction happens. ओके तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ये सेल में है, यहाँ पे इसको माइनस से शो किए हैं और यहाँ पे इसको प्लस से शो किए, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसको प्लस से शो किए हैं और इसको माइनस से शो किए हैं। तो आप इससे देख करके ये यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हिच वन इज़ galvanic cell or electrolytic cell. You can easily differentiate based on the symbol of electrodes, whether it is positive or negatively charged. Now come to the Daniell cell. Daniell cell ये एक्चुअली में Daniell cell it is a special टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये बेसिक वर्जन है गैल्वेनिक सेल का। ओके और ये बहुत पहले डिज़ाइन किया गया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन फ्रेडरिक डैनियल, विच वाज ब्रिटिश, एंड इन 1836 ही डिजाइंड दिस गैल्वेनिक दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल बाय मेकिंग जिंक एज एनोडिक इलेक्ट्रोड एज एनोड एंड कॉपर एज कैथोड। तो यहाँ पे सेम वे में जैसा गैल्वेनिक सेल में होता है वैसा ही इसमें बनाया था। इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड का कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। तो इसके कारण से जिंक का जब ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक से जिंक सल्फेट होगा और कॉपर सल्फेट से लेकर के कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ओके तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ में आएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रॉन बाहर ही और आएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन में क्या होगा, कॉपर 2+ से कॉपर हो रहा है, तो कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर आता है। इसमें ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि कैथोड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, अंदर की कैथोड में अंदर की ओर और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड में क्या होता है, बाहर की ओर। तो इसमें क्या होता है, बाहर की ओर जा रहा है और कैथोड में अंदर की ओर आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ओके और ये दोनों को न्यूट्रल बनाने के लिए साल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। ओके तो साल्ट ब्रिज का इस तरीके से करके यूज कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एज यू कैन सी जिंक टू जिंक 2+ एंड रिडक्शन हाफ से रिएक्शन इज कॉपर 2+ से कॉपर। तो नेट रिएक्शन जो होगा वो ये होगा और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, पहले ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को लिखते हैं जो कि एनोड पे होता है और कैथोड वाले पार्ट पे जिस पे रिडक्शन होता है उसको बाद में लिखते हैं। और सॉल्ट ब्रिज को हम लोग 1-2 पैरेलल लाइन से शो करते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज है और इधर और ऑक्सीडेशन हो रहा है और इधर रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। तो जिंक से जिंक सल्फेट हो रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर हो रहा है। अब इसको हम लोग या तो ऐसे भी सिंपली शो कर सकते हैं या फिर यदि जिंक 2+ चूँकि ये एक्वस सॉल्यूशन है इसकी कुछ मोलरिटी होगी, समटाइम्स इफ मोलरिटी इज़ गिवन तो मोलरिटी को भी ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं। यदि नहीं दिया हुआ रहता है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर सिंपली एक्वस सिचुएशन लिख देंगे। अब EMF ऑफ डैनियल सेल ये क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली में यहाँ पे देख रहे हैं 2 पोटेंशियल बन रहा है, नहीं 2 पोटेंशियल डेवलप्स हुआ है। जैसे कि एक यहाँ पर जिंक और जिंक सल्फेट के बीच और एक यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर 2+ के बीच। तो इसके कारण से ये पूरे के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो इतना प्लस इतना होगा। तो एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक पे रिडक्शन हो रहा है। इस कारण से दोनों को ऐड करेंगे तो एक पोटेंशियल एट एनोड प्लस पोटेंशियल एट कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। उसी को हम लोग सिंपली लिख दिए, जिंक का ऑक्सीडेशन एंड कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा है। अब इसको समटाइम्स शो करने के लिए क्या करते हैं कि अलग अलग वे में शो किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये उसी के बारे में है, जिंक और कॉपर को कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो अब जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या बताता है, यदि मान लो क्या कि इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है क्या कि उसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी या तो बहुत ज़्यादा है या फिर रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। डिपेंड्स करता है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे है। जैसे कि हमें ये कहा जाएगा कि 1.5 वोल्ट है और 15 वोल्ट है, तो 15 वोल्ट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ज़्यादा होगा, 1.5 वोल्ट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होगा। तो सेम वे में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये बताता है क्या कि कोई भी चीज़ होने की स्पीड कितनी है। अब आते हैं क्या कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डिपेंड्स करता है 3 थिंग्स पे। फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड।
तो ये पहला क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कैसा है, जिंक का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, आयरन का है, कैसा नेचर है इलेक्ट्रोड का। ओके, सेकंड बताता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या। अब कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करता है कि वो गाढ़ा है, पतला है, क्या है। ये मतलब 1 मोलर है, 2 मोलर है, 0.1 मोलर है, 0.01 मोलर है, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस chemical reaction happens, and accordingly the potential change also gets changed. टेम्परेचर जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आयंस बिहेव करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नर्स इक्वेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, तो अब आते हैं ऑब्जर्वेशन डैनियल सेल में क्या है। तो हम लोगों ने ये डैनियल सेल में देखा है कि जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को यदि वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें तो एक वायर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू होगा, एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट पे। सेकंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये क्या कह रहा है कि जिंक रड क्या होता है, ये जिंक से जिंक 2+ हो रहा है और कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जिंक रड धीरे धीरे करके पतला होगा और कॉपर का जो रड है वो धीरे धीरे मोटा होगा। इसके कारण से कॉपर रड का मास गेन होगा और जिंक रड का मास लूज करेगा। इसके अलावा जब जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट का क्या होगा, बढ़ेगा, और जबकि कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। इसके बाद फिर आते हैं सॉल्यूशन इन बोथ कंपार्टमेंट्स रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें जो देख रहे हैं ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जिंक से जिंक 2+ आया और यहाँ पे कॉपर 2+ है। कंसंट्रेशन यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसका ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस पर नेट पोटेंशियल चार्ज डेवलप नहीं होने देता है। कौन, सॉल्ट ब्रिज। कौन डेवलप नहीं होने देता है, ये सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सॉल्ट ब्रिज फाइनली है क्या। ओके, तो सॉल्ट ब्रिज ये इन्वर्टेड U-ट्यूब है। आप देखते हो U-ट्यूब ऐसे होता है, उसी का इन्वर्टेड ये शेप है, ये इन्वर्टेड U-ट्यूब है। और ये क्या होता है, क्या कि इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा रहता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हु कैन नॉट रिएक्ट विथ concentrated with electrolytic solution of cell। ओके, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे वहाँ पे जिंक 2+ है या कॉपर 2+ है, वो सब के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें होते हैं। जनरली KNO3, NH4, NO3 या फिर KCl, ये सब कुछ जिलेटिन या अगर के साथ हार्ड मिक्स करके उसके बाद हीट किया जाता है और इसके अंदर भर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर छोटा ये दिख रहा है, यहाँ पे कॉटन वूल जो रुई होते हैं वो डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण से कि ये डिफ्यूज़न इसलिए ना हो, प्रॉपर वे में हो और कंडक्टिविटी भी बनी रहे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कि होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स एक तो ये क्या कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और वेलोसिटी ऑफ कैटायन और एनायन जो कि सॉल्ट का में है, जैसे यदि KNO3 है तो K+ और NO3- दोनों का जो वेलोसिटीज़ है, क्योंकि वो मूव करेगा एक्वस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, दोनों का स्पीड क्या होना चाहिए, सेम। ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है जेईई में। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट को ये क्या करता है, कंप्लीट करता है। आप देख रहे हो क्या कि सर्किट को ये कंप्लीट कर रहा है। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस सॉल्यूशन का इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये इसमें इस सॉल्यूशन को और इसको सेपरेट करता है, ये दोनों को मिलाने नहीं देता। सॉल्ट ब्रिज है, इसको न्यूट्रल भी रखता है, लेकिन साथ ही साथ इसको डिफ्यूज होकर के इधर से इधर नहीं जाने देता, या तो इधर से इधर नहीं जाने देता है। इसके अलावा ये एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी बनाने से रोकता है। ऐसा क्योंकि यहाँ पे इसको न्यूट्रल कर देता है, तो यहाँ पे जिंक और जिंक का जो आयन है जिंक 2+, दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है। और फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए कि एनोडिक साइड जो हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये इसमें Mn+ ज़्यादा एक्सेस में होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव आयन इधर से
जैसे देखते हैं जिंक से जिंक N2+ आया, जिंक 2+ यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, निगेटिव आयन भेजेगा। और फिर इसी तरह से यहाँ पर कॉपर 2+ है, ये प्लस चार्ज है तो इसको क्या चाहिए, निगेटिव आयन, तो ये सॉल्ट ब्रिज इसको क्या भेजता है, निगेटिव चार्ज। ओके, तो इस तरीके से और इस तरीके से भेजता है कि दोनों जो आयंस जाने का स्पीड हो वो भी क्या हो, सेम हो। ओके, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। एनोडिक साइड में निगेटिव आयन को भेजता है वो, और कैथोडिक साइड में या और रिडक्शन हाफ सेल में ये पॉजिटिव आयन को फ्लो करता है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल पे आते हैं कि गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कितने वे में कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल इसे एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और एक में क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या करते हैं कि यहाँ पे मेटल से मेटल आयन में आया और जहाँ मेटल आयन का कोई कंसंट्रेशन सपोज C1 है, और एक रिडक्शन हाफ सेल में मेटल आयन जहाँ से मेटल आयन में आया, तो हम लोग देख रहे हैं एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है यहाँ, और बीच में क्या होते हैं, सॉल्ट ब्रिज होते हैं। सॉल्ट ब्रिज को डबल पैरेलल लाइन से शो करते हैं। एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल इट इज़ शोन बाय फर्स्ट इट इज़ there is oxidation, so a oxidation is happening here. For example, for Daniell cell it represents zinc and one parallel line is given and then oxidation and its oxidized state, that is zinc 2+। तो जिंक से जिंक 2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, so it simply shows by zinc parallel line zinc 2+ and then salt bridge notation that is given by double parallel line, and then there is reduction half cell, and it is because there is reduction, so first reduce copper 2+ and then one again parallel line and copper. So this parallel line is given to differentiate two state, one is solid state and second one is electrolytic solution. So for that, because of that a parallel line is given। समटाइम्स इन स्टेट ऑफ पैरेलल लाइन की जगह पे सिंपली कॉमा भी डाल सकते हैं। ओके, तो जिंक से जिंक 2+ ये ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो गया कॉपर 2+ से कॉपर, और इसको समटाइम्स यदि कंसंट्रेशन दिया रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का तो 1 मोलर या जो भी दिया रहेगा, ये 0.1 मोलर तो 0.1 मोलर कुछ भी डाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं या जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसमें गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, और सिंपली गैसेस को मैं वहाँ पे रख नहीं सकता हूँ क्योंकि गैसेस सॉलिड नहीं होते या लिक्विड नहीं होते। तो जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, तो ये सारे को इलेक्ट्रोड के थ्रू रिएक्शन होने के लिए इलेक्ट्रोड में गैसेस को ट्रैप किया जाता है, और ट्रैप करने के लिए प्लेटिनम एज इलेक्ट्रोड इज वाइडली यूज्ड। वाई प्लेटिनम इज यूज्ड बिकॉज इट इज़ इनर्ट। ओके, तो जनरली प्लेटिनम को रखते हैं, तो वहाँ पे जब भी यदि गैसेस इन्वॉल्व होंगे तो गैसेस के बगल में हम लोग प्लेटिनम डाल देंगे। ओके, वाई प्लेटिनम, प्लेटिनम इज एक्ट्स लाइक एज ए इलेक्ट्रोड एंड इट ट्रैप्स और ऑक्लूड मीन्स इट ट्रैप्स हाइड्रोजन गैसेस। ओके, सो यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 से हाइड्रोजन प्लस, और कॉपर 2+ से कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन H2 जो गैसेस है वो सिंपली ऐसे रह नहीं सकती, उसको रखने के लिए प्लेटिनम चाहिए एज ए इलेक्ट्रोड। और तो या तो सिंपली प्लेटिनम ऐसे और डाल देते हैं, ब्रैकेट में गैसेस लिखते हैं, या फिर समटाइम्स एक यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये शो कर रहे हैं एक पैरेलल लाइन डाल देते हैं। अब थर्ड में क्या है क्या कि यदि मान लो क्या कि एक हाफ सेल में दोनों जो कंसंट्रेशन हो, दोनों कुछ कंसंट्रेटेड पार्ट हो। ओके, जब यहाँ पे जैसे Fe2+ से Fe3+ में सपोज ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो दोनों चूँकि कंसंट्रेशन है और Fe2+ एज ए इलेक्ट्रोड हो नहीं सकता, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्लेटिनम मुझे डालना होगा। ओके, तो जहाँ भी यदि एक ही हाफ सेल में पूरी तरह से आयंस का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पर भी हम लोग प्लेटिनम एज ए इलेक्ट्रोड यूज करेंगे।
अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 33। ये कहता है क्या कि कंस्ट्रक्टर सेल इन हिज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑल्सो टेल अबाउट इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे ये जिंक से जिंक सल्फेट में हो रहा है, मतलब M1 जो है, M1 मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे, जो कि क्या होता है निगेटिवली इलेक्ट्रोड। और रिडक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में कैथोड पे। ओके, और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो इसको सिंपली इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या जिंक सल्फेट पे जिंक का जो चार्ज है वो 2+ है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट में चार्ज कितना है, कॉपर 2+। तो ऐसे सिंपली डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड पे हो रहा है, एनोड को हम लोग माइनस से शो करते हैं। ये रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल कैथोड पे हो रहा है, और कैथोड को हम लोग प्लस से शो करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर बी। इसमें ये कह रहा है कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे कॉपर का स्टेट क्या आएगा, +2, तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने। और रिडक्शन हो रहा है AgNO3 का, तो सिंपली AgNO3 है, सिंपली AgNO3 से Ag आ रहा है, तो समटाइम्स NO3 माइनस को इग्नोर भी कर लेंगे, सिंपली Ag+ का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, दैट इज Ag+। सो Ag+ टू Ag एंड इट हैपन्स एट कैथोड। सो कैथोड को यहाँ पर भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझाने के लिए जनरली हमें कुछ नहीं करना है, इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे ही केवल लिख सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 34। ये क्या कर रहा है, क्या कि इसमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है E0। जब भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना हो कोई भी सेल का, गैल्वेनिक सेल का, तो ये एक हम देखे थे कि एनोड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, और कैथोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना क्रिएट हो रहा है। और वो भी कब, स्टैंडर्ड सिचुएशन पे देखेंगे, 1 bar 1 मोलर एंड टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड। ओके, तो फिर ऐसे में देखेंगे तो हम लोग ये पहले ये होता है क्या कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 हाफ सेल का रिएक्शन दिया हुआ है। 2 हाफ सेल में ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या कि रिडक्शन किस पे हो रहा है। तो रिडक्शन हम लोग जानते हैं कि कैथोड पे होता है। तो जनरली रिडक्शन जो रिडक्शन हाफ सेल का जो पोटेंशियल है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन द पोटेंशियल एट एनोड। ये लिख रहा है कि निगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड, इसका पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रोड होगा वैल्यूज, वो हमेशा कैथोड वाले वैल्यूज पे या रिडक्शन पोटेंशियल वाले से कम होगा। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे दोनों इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। 2 रिडक्शन पोटेंशियल है, 2 रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसमें इसका वैल्यू 0.8 वोल्ट है और इसमें -0.4 वोल्ट। दोनों में कौन सा स्मॉलर है, ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। जो ग्रेटर होगा वो रिडक्शन करेगा, वो क्या करेगा, रिडक्शन वाला काम करेगा। और रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे। और जो छोटा वाला रहेगा वो कहाँ क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। तो यहाँ पे इसका एक्चुअली में रिडक्शन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये शो किया है इसका वैल्यू इज ग्रेटर देन इस वैल्यू। यहाँ पे इसका वैल्यू ग्रेटर देन ये वैल्यू, ये यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। ये एक्चुअली में होना चाहिए ऐसे, इधर भी होना चाहिए ऐसे। 0.8 वोल्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन -0.4 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो Ag इलेक्ट्रोड है, Ag इलेक्ट्रोड ये क्या है, कैथोड पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। और जो कैडमियम को वाला इलेक्ट्रोड है वो एनोड पे निगेटिव होगा। तो इस कारण से हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कैडमियम पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैडमियम पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि सिल्वर वाला यहाँ पे क्या कहाँ पे काम करेगा, कैथोड पे। और कैथोड पे रिडक्शन मुझे शो करना है, और एनोड पे क्या शो करना है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और फिर अब देखते हैं कि कैडमियम से कैडमियम 2+ है। ओके, कैडमियम से कैडमियम 2+ है। इस रिएक्शन को, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को यदि पूरी तरह से यदि मान लो क्या कि रिवर्स कर देंगे, तो जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा। जैसे कैडमियम से यहाँ पे कैडमियम इधर रिवर्स करती है रिएक्शन को, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर माइनस हो गया, डैट मीन्स ये रिडक्शन पोटेंशियल कैडमियम का हो गया। ओके, और ये Ag+ तो ऑलरेडी रिडक्शन में आ रहा था। तो इसी कारण से यहाँ पर सारे का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, और इससे हमें ये EMF ऑफ द सेल मिल जाएगा। ओके, तो ये EMF ऑफ द सेल ये एक्चुअली बताता क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 हाफ सेल। ओके, सो
ये स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये इंडिपेंडेंट होता है क्या कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, ये लिबरेट हो रहा है, उससे इंडिपेंडेंट है। ये किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक फिक्स वैल्यू होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, और इसको कंडीशन करने के लिए जैसे यहाँ पर रिडक्शन निकाले थे कहाँ पे, कैथोड पे, और यहाँ पे रिडक्शन फाइनली निकाले कहाँ पे, एनोड पे। एनोड वाले पर यहाँ पर माइनस साइन, मतलब ये राइट हैंड साइड था और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये उसी को हम लोग फिर से लिखे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट साइड इलेक्ट्रॉन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। ओके, या फिर इसी को हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो या तो ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है या कैथोड पे। जब इसी को रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे लिखाएगा रिडक्शन एनोड, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा जैसा यहाँ पे हम लोग किए थे। और फिर ये हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए जो रिडक्शन एनोड पे होगा वो ऑलवेज स्मॉलर देन उसको दैट वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड इज ऑलवेज स्मॉलर देन रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ओके, ये अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड का जो वैल्यूज होना चाहिए जहाँ पर पोटेंशियल का वो ऑलवेज स्मॉलर देन रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है जिंक 2+ से जिंक, और यहाँ पर कॉपर 2+ से कॉपर दिया हुआ है जिसका वैल्यू 0.34 वोल्ट है। जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है। तो ई सेल कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए दो वे में, एक बार रिडक्शन पोटेंशियल में और एक बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग जानते हैं, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि ये दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है, ये वाला पोटेंशियल बड़ा है, ये दोनों का रिडक्शन हो रहा है ना, कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है और यहाँ पे जिंक 2+ से जिंक में जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, दोनों का रिडक्शन हो रहा है। तो दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का है। इसमें से कौन सा स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, और ये क्या है, ग्रेटर है। जो ज़्यादा ग्रेटर होगा वो क्या होगा, जो हम अभी देखें ना रिडक्शन जो यदि कैथोड पे ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये कैथोड पे होगा और ये क्या पे होगा, एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जहाँ पे रिडक्शन होगा वो वाले वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, या तो 0.34 वोल्ट है, इसको 0.34 वोल्ट लिख दिए यहाँ से। यहाँ रिडक्शन हो रहा है एनोड पे, तो एनोड पे रिडक्शन हो रहा है, डैट मीन्स यहाँ पे क्या है, -0.76 वोल्ट। तो अभी देखे थे कि ये ई सेल निकालने के लिए दिस माइनस दिस। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल जो कि कैथोड पे होगा और रिडक्शन पोटेंशियल जो एनोड पे होगा वो माइनस साइन के साथ लेंगे। तो यहाँ पे इसको माइनस साइन के साथ लिए और ये वैल्यू आ गया 1.1 वोल्ट। यहाँ पे उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वे में भी शो करते हैं, मतलब इसी प्रॉब्लम को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के वे में या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वे में या सिंपली ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन ऐसे वे में, 3 वे में हम लोग इलेक्ट्रो ई सेल निकाल सकते हैं, सेल ऑफ ईएमएफ। तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में होगा सबका ऑक्सीडेशन करेंगे। हम लोग जानते हैं बेसिक फार्मूला ये होता है, बेसिक फार्मूला होता है रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे ये जिंक से जिंक 2+ है, चूँकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सारे का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और देखेंगे क्या कि यहाँ पर भी 1.1 वोल्ट आया और यहाँ पर भी 1.1 वोल्ट आया। डैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वे में सारे का कैलकुलेट करें, रिडक्शन पोटेंशियल में कैलकुलेट करें, या फिर जो बेसिक फार्मूला है उसके थ्रू कैलकुलेट करें, वैल्यूज़ सेम आएगा। जनरली हम लोग किसके थ्रू करते हैं, इस तरीके से, ये वाला तरीका से रिडक्शन पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, या फिर उसको लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल एट राइट साइड इलेक्ट्रोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड। और कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन जो कि कोई भी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल ये रिएक्शन को होने देता है, इसके लिए हमेशा ई सेल जो सेल ऑफ ईएमएफ है वो इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन को होने के लिए यदि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी या वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। फिलहाल एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं जिसमें ये करा वैल्यूज़ दिया हुआ है अलग अलग का,
ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या कि Fe3 प्लस ये Ce3 प्लस को ऑक्सीडाइज करेगा या नहीं करेगा। तो Fe3 प्लस और Ce3 प्लस Ce3 प्लस ऑक्सीडाइज होकर के Ce4 प्लस में आ रहा है। तो ये जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम दोनों का ये देख रहे हैं, इसका ई सेल निकाल रहे हैं। ई सेल जब निकाले तो ये इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दोनों का ई सेल निकाले, ई सेल इज ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों का वैल्यू आया क्या, माइनस साइन में। जब माइनस साइन EMF ऑफ सेल क्या है, निगेटिव। जब निगेटिव है तो हम अभी देख सकते हैं ये सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए रिएक्शन को होने के लिए। जब निगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये Fe3 प्लस Ce3 प्लस को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अब आते हैं ये बी पार्ट कर रहा है कि सेम वे में FeCl3 और SnCl2 ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा, ये दोनों के बीच ऐसा हो रहा है रिएक्शन होगा। तो फिर FeCl3 और SnCl2 ये दोनों रिएक्शन करेगा तो FeCl3 ये तो जानते हैं कि FeCl2 में कन्वर्ट होगा, SnCl2 SnCl4 में होगा। दोनों का हाफ रिएक्शन देखते हैं, दोनों का हाफ रिएक्शन देखते हैं और पोटेंशियल देखते हैं। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है और फाइनली ई सेल जो निकाले वो आया 0.61 वोल्ट और ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो मतलब रिएक्शन होगा। ओके, इसी तरीके से ये कह रहा है कि I2 डिस्प्लेस करेगा कि नहीं क्लोरीन को कैल्शियम से। सबों का रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल दोनों का बना लिए। और दोनों का बना करके जब सेल ऑफ EMF निकाले तो ये निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब आते हैं इसके बाद कंसंट्रेशन सेल पे। कंसंट्रेशन सेल डैनियल सेल का ही टाइप है, लेकिन इसमें कि मैटर जो होता है क्या कि मतलब कि इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड नहीं होते, इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। ओके, तो एक तरफ मतलब कि ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है और एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन या लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो हाई कंसनट्रेशन से स्मॉल मतलब डाइल्यूट कंसनट्रेशन की ओर जाएगा। तो ये कैसे रिएक्शन, उसके कारण जो रिएक्शन होता है उसके कारण वो वैसे सेल को कहते हैं कंसनट्रेशन सेल। ओके, इसमें एक्चुअली में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, केवल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ कंसनट्रेशन EMF of the cell arise. Okay, so this type of cell is called concentration cell. जैसे क्या कि एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन से ये H+ में कन्वर्ट हुआ, मतलब हाइड्रोजन एक गैस है जिससे H+ में आया और दूसरे तरफ में भी H+ है, मतलब दूसरे जो कैथोड साइड है वहाँ पर भी H+ है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या है, C2 और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था C1। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 है, और जहाँ पे ये दिया हुआ कि C2 इज ग्रेटर देन C1। कंसंट्रेशन ऐसे रिएक्शन होने के लिए C2 का ग्रेटर देन C1 होना चाहिए। ओके, तो एक एनोड पे हो रहा है और एक कैथोड पे हो रहा है रिएक्शन को। तो ओवरऑल सेल जो प्रोसेस होगा वो हाइड्रोजन प्लस जो C2 है वो हाइड्रोजन प्लस C1 में कन्वर्ट हो रहा है, और जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसको जनरली इक्वल कंडीशन में दिखाते हैं। तो नेट सेल प्रोसेस है या कि फ्लो ऑफ हाइड्रोजन प्लस, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट साइड वाले का हाइड्रोजन प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से लेफ्ट हैंड हाफ सेल की ओर जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा क्या कि ई सेल का जो टर्म है ये इन्वॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि ई सेल तो दोनों सेल के लिए बराबर होगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोड तो सेम ही है। तो ऐसे में ई सेल जो निकालते हैं वो आता है 2.303 RT/NF log C2/C1, जहाँ C2 राइट साइड वाले का और C1 कंसंट्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाले का या एनोड साइड का। तो ये वैल्यूज़ होता है यदि कंसंट्रेशन सेल से निकालते हैं। तो ये सारे टर्म्स कैसे आते हैं, ये आते हैं नर्स्ट इक्वेशन से, जो कि हम लोग अब देखने वाले हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है ये आज यहीं पे रहने देते हैं, अगले लेक्चर वीडियोस में नर्स्ट इक्वेशंस देखेंगे, इसके बाद और भी कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम देखेंगे। दैट्स ऑल। ओके।